Good afternoon, dear students. Yesterday, we have started with our chapter number 1, that is the living world. Today, we are moving ahead with the same chapter, but with one new concept. Okay. Hope you have studied the last part, that is the last section of the chapter, very well. Today, I have made the screen interactive comparatively. Okay, yes, than yesterday. Okay, so you will be having a better visualization of the topics, better visualization of the subjects. Okay, and you can get my voice more precisely. Okay, than yesterday. Fine. So whatever we have studied yesterday, uh, we are moving ahead from that particular topic. Okay, we have yesterday studied properties of the living organism. I am just summarizing the things. Okay, that is starting with the what do you mean by living things, living entities? Okay, how you can identify the livings? Okay, how you can compare the livings with the non-livings on this planet? What are the properties that is you can observe over here, that is growth, reproduction, metabolism, cellular organization, as well as the consciousness. These are the properties you can say of any living organism. Okay, so up to that we have studied yesterday. Okay, today we are moving ahead with one more topic, that is diversity of the living world. Okay, fine. Just observe your surrounding. Fine, you will find enormous diversity का मतलब क्या होता है? आप अगर आपके आसपास चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या सभी चीजें आपको एक जैसी लगती है क्या? सो नॉट एट ऑल, सभी चीजें अलग अलग लगती हैं. ओके, अब इन चीजों में से भी हम सिर्फ आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे अबाउट द लिविंग्स ओनली. ओके, तो हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास, ओके, वट एवर नियर अबाउट अस. Okay, in that particular, you can see variety of the plants are there, variety of the animals are there, and in this particular monsoon season you can observe variety of the insects. Okay, बहुत अलग अलग तरह के insects हमारे घर में भी अभी visit करते हैं. Okay, because of this monsoon and raining season, you can say. So this is called diversity. Okay, मतलब नेचर ने जो क्रिएट किया है वो सभी चीजें एक जैसी नहीं है. Okay, it is having variety, it is having differences. Okay, all are living, लेकिन सबके रहने के हैबिट भी अलग है, सबके खाने पीने के हैबिट भी अलग है, मतलब फूड हैबिट्स भी अलग है. Okay, their habitats are different, their behaviors are different. Okay, everything is different. Okay, and see the beautiful life. Okay, you can see कि एक मतलब लिविंग वर्ल्ड इतनी ब्यूटीफुल है कि अगर आप उसको ही ऑब्जर्व करते रहोगे तो लाइफ टाइम हमारी लाइफ स्पान खत्म हो सकती है, लेकिन ये डाइवर्सिटी कभी खत्म होने वाली नहीं है. इन द नेक्स्ट स्लाइड्स यू आर गोइंग टू जस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग्स. ओके, और ये जो पहला वाला ही आपका जो चैप्टर है, यही आपको अट्रैक्ट करता है सबसे पहले तो. आपको क्यों बायोलॉजी में मजा आने वाला है? ओके, बिकॉज ऑल द थिंग्स यू आर गोइंग टू स्टडी, ओके, जस्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. ओके, मतलब वहीं से हम शुरुआत करते हैं और बाद में इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम उसका डिटेलिंग भी इन फ्यूचर करने वाले हैं in 11th also, and obviously some part will be discussed in the 12th also. Okay, so let me start our today's session. uh, Diversity in the living world. Fine, so what do you mean by diversity? So सबसे पहला we are talking about diversity of the living entities. Okay, living का मतलब होता है बायो, कल ही हमने स्टडी किया था. फाइन, तो लिविंग एंटाइटी की डाइवर्सिटी, तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी. अदरवाइज डाइवर्सिटी तो बहुत सारी, आपके घर पे 10 किताबें हैं तो ऑल दीज आर डिफरेंट. ओके, तो दो दैट इज ऑल्सो डाइवर्सिटी. ओके, आपके घर में किचन में जो बर्तन है वो भी अलग अलग तरह के, दैट इज ऑल्सो डाइवर्सिटी. बट व्हाट वी आर लुकिंग आफ्टर, दैट इज बायोडाइवर्सिटी. वी आर लुकिंग एट ओनली the living kingdom, okay, the living world, and that's why the word has been given biodiversity. That means you can say it is the diversity of the life. Okay, so यहाँ पे आप definition आपके slide पे देख सकते हैं. Okay, so the number and types of the organisms present on this planet earth refer to biodiversity. Okay, number as well as its type. Okay, ये दोनों जो हैं, ओके, ऑल द ऑर्गेनिजम्स, इन दोनों को हम अकाउंट करते हैं
और वो कुल मिला के रिप्रेजेंट करते हैं इस प्लेनेट की बायोडाइवर्सिटी को। ओके, आप देखिए, आप अगर डेजर्ट्स में जाते हैं अलग तरह के एनिमल्स आपको देखने मिलते हैं। आप अगर माउंटेन रेंजेस में जाते हैं, ओके, तो वहां पे आपको अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स देखने मिलते हैं। ओके, सो एवरीवेयर इट इज अ डिफरेंस। ओके, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी कितनी है। इन दिस प्रेजेंट स्लाइड यू कैन ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ द स्पीसीज डिस्क्राइब्ड टिल नाउ, आज की डेट में डिस्क्राइब की गई स्पीसीज के जो नंबर है दैट इज 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। ये आज की डेट में डिस्क्राइब की गई है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है दैट इट इज द फाइनल डिजिट। ओके, ये एंड नहीं है। ओके, इट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो नंबर ऑफ द स्पीसीज अभी तक साइंटिस्ट ने जो आइडेंटिफाई किया है, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट दैट। हमें जिसके नाम पता है, हमें जिसका हैबिटेट पता है, हमें जिसका नेचर पता है, हमें जिसका बिहेवियर पता है, ओके, वो दिखने में कैसे लगते हैं, उसकी एनाटॉमी पता है, उसकी मॉर्फोलॉजी पता है, राइट। तो ऐसी जो डाइवर्सिटी है, ऐसी जो स्पीसीज है, ओके, द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लेनेट, इट इज नियर अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन। इसके अलावा इससे ज्यादा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। फाइन, सो बायोडाइवर्सिटी को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्या उसके बारे में कुछ प्रोविजंस है, पर्टिकुलरली द साइंटिफिक वे, और उसमें भी बायोलॉजिकल वेज के बारे में ऑब्वियसली हम बात करने वाले हैं। ओके, सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू लर्न बायोडाइवर्सिटी, सी, किसी भी साइंस स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ओके, साइंस का स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट से कैसे अलग होता है, तो साइंस के स्टूडेंट के माउथ में हमेशा क्वेश्चन होना चाहिए। जनरली WH क्वेश्चंस तो होने चाहिए जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। ओके, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट। ओके, अगर इसके आंसर आपको मिलते हैं तो यू कैन कंसीडर दैट यू आर ऑन द पाथ ऑफ द रिसर्च। ओके, और साइंस का काम यही है, फाइन, कुछ नया ढूंढना। चाहे आप डॉक्टर भी क्यों ना बन जाए, लेकिन हर बार सभी चीजें एक जैसी तो मिलने वाली नहीं है। सभी पेशेंट अलग अलग होंगे, सभी की प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगी, राइट। सो दैट इज अ डिफरेंस ऑफ द साइंस स्टूडेंट। तो आपके आसपास में जो आपको दिख रहा है अभी, द लिविंग वर्ल्ड, ओके, दैट यू हैव टू चेक। ओके, यहाँ पे जो आप पढ़ने वाले हैं उसके कोरिलेशन में आप उसको चेक करिए। फाइन, ओके, सो whenever you are going to study biodiversity, तो एक वर्ड आपके सामने आता है, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। ओके, सो टेक्सोनोमी का मतलब क्या है, टेक्सो प्लस नोमी। नोमी का मतलब भी यही है, स्टडी पर्टिकुलर टॉपिक, टेक्सो। ओके, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को चेक करने के लिए, उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए एक लेडर सिस्टम बना हुआ है। जैसे एक सीढ़ी होती है घर पे, तो स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। ओके, जैसे अल्फाबेट्स में भी बी जो है हमेशा ए के बाद में आता है, तो एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर फिक्स है। ओके, तो ऑर्डर वे में हम वहां पे क्लासिफाई करते हैं। ये जो साइंस है उसको बोला जाता है टेक्सोनोमी। ओके, बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें भी काम करते हैं। फाइन, सो टेक्सोनोमी की डेफिनेशन क्या होती है, सो इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। चार ऑब्जेक्ट्स हैं इसके टेक्सोनोमी के। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 क्लासिफिकेशन, नंबर 3 नॉमेनक्लेचर, एंड नंबर 4 दैट ऑफ itself organism. Okay, तो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, एंड एट द एंड इट्स टोटल प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहाँ पे ये जो तीन बेसिस से हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं, ये रैंडम प्रोसेस नहीं है, किसी ने कुछ उठा लिया और उसको बोल दिया कि ये, इसका नाम आज से ये रहने वाला है, तो इट इज नॉट द वे। किसी ने कोई एक ऑर्गेनिज्म लाइफ में पहली बार देखा और उसने बोल दिया कि आज से मैं इसका नाम ये दूंगा, जैसे हम अपने पेट्स के नाम देते हैं, तो वो रैंडम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नेमिंग प्रोसेस जो है वो रैंडम नहीं है, वो एक साइंटिफिक सिस्टम से परफॉर्म होती है। एंड दैट्स व्हाई द टेक्सोनोमी इज आल्सो नोन एज सिस्टेमेटिक्स। आप अपने स्लाइड पे यहाँ पे देख सकते हैं दैट द टेक्सोनोमी इज नोन एज systematics. Okay, यहाँ पे you can observe, okay, on the virtual cursor you can observe that. Fine, systematics
तो ये वर्ड भी इंग्लिश वर्ड नहीं है, इट इज नॉट इंग्लिश वर्ड, ओके। ये भी एक लैटिन वर्ड से ही डिराइव किया गया है। सिस्टेमेटिक्स का जो मतलब है, उसका जो बेस वर्ड है, दैट इज नॉन एज सिस्टेमा, ओके। दैट इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। मैंने अभी आपको बोला, इट इज नॉट रैंडम क्लासिफिकेशन, इट इज नॉट रैंडम नेमिंग एंड एवरीथिंग, ओके। एक साइंटिफिक वे में सिस्टेमेटिक हम फॉलो करते हैं, ओके। सो सिस्टेमेटिक्स कंसीडर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ओके। ये समझना पड़ेगा। से अगर हम जनरली हम सुनते भी हैं कि ह्यूमन के सबसे नजदीक कौन सा एनिमल है, ह्यूमन के सबसे नजदीक कौन सा एनिमल है, तो ऑब्वियसली हर एक के जहन में वो बात आती है दैट चिंपांजी इज द मोस्ट नियर, ओके। कॉमनली पीपल से मंकीज, लेकिन अगर उसमें भी हम डिफरेंशिएशन करवाने का ट्राई करते हैं, देन अल्टीमेटली द आंसर कम्स टू चिंपांजी। अच्छा, क्यों किसी ने काउ नहीं बोला, किसी ने डॉग नहीं बोला, किसी ने फ्रॉग नहीं बोला? व्हाई? बिकॉज इन द इवोल्यूशनरी पाथ उसके फीचर्स हमें क्लियरली मार्क करते हैं कि दीज आर द मोस्ट नियर एनिमल्स टू द ह्यूमन बीइंग, ओके। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को मार्क करते हैं और उसके हिसाब से हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ओके। इट इज नॉट अ रैंडम प्रोसेस। कौन किसके ज्यादा नजदीक है, कौन किससे ज्यादा दूर है, on the basis of that we are classifying the organisms. You can see over here in चारों फोटोग्राफ में ये या तो स्टूडेंट्स हैं या कोई साइंटिस्ट है, वो लोग क्या कर रहे हैं? You can see this girl, okay, she is trying to identify a particular plant, okay. The scientist have kept some bottles, okay, और उसमें भी उसने कुछ एनिमल्स को कीप करके रखा है टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एनिमल, और उसके हिसाब से फिर वो उसको क्लासीफाई करने वाला है। ये भी आप देख सकते हैं, कोई साइंस स्टूडेंट है, ये फ्लावर्स को स्टडी कर रहा है, ओके। तो एक साइंस स्टूडेंट को यही काम करना रहता है, और यहाँ पे भी एक साइंटिस्ट कुछ पेपर वर्क पे काम कर रहे हैं, ओके, एंड ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स, ओके। और ये लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करने के ये प्रोसेस में लगे हुए हैं, ओके। सो इट इज नॉट अ रैंडम प्रोसेस, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद आपको किसी एक पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल या किसी बैक्टीरिया का नाम जाके मिलता है, ओके। तो इट इज नॉट अ रैंडम प्रोसेस, ओके। कहां से इस चीज की शुरुआत हुई? तो यू कैन सी ओवर हियर सिस्टेमा नेचर। ये एक बुक है विच इज रिटन बाय कार्लस लिनियस, एक साइंटिस्ट है कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस ने ये बुक लिखी, ओके, फर्स्ट टाइम, ओके। आपके स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है, ओके, वो सिस्टेमा नेचर का ही कवर पेज है, द ओरिजिनल बुक, ओके, फाइन। सो इन दैट वे कार्लस लिनियस ने सबसे पहले ट्राई किया टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स, ओके। क्योंकि उसने देखा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बहुत अलग लग रहे हैं, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से बहुत नजदीक लग रहे हैं, ओके। सो इट वाज क्रिएटिंग सम कंफ्यूजन्स, ओके। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऑब्वियसली किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही है। सो ही वाज कार्ल लिनियस जिसने ये इनिशिएटिव लिया, एंड ही स्टार्टेड टू परफॉर्म distribution classification of the organism, and also he started to give a scientific name to a particular organism, okay। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई। ये आपका नेट क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी बुक में लिनियस ने ये फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन मेंशन किया था? तो दैट वाज सिस्टेमा नेचर। और सिस्टेमा नेचर बुक किसने लिखी है, वाइस वर्सा क्वेश्चन, तो ये हो गया लिनियस, ओके। इसका पूरा नाम है कार्लस Linnaeus, okay, fine. So in the next slide you are going to observe क्लासिफिकेशन के जो बेसिक प्रोसेस है, ओके। हम क्लासिफाई कैसे करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसकी बेसिक प्रोसेस क्या है? तो एज सच मैंने बोला कि नॉर्मली तो आप उसको रैंडम प्रोसेस से क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू हैव परफॉर्म सम ऑफ द बेसिक प्रोसेसेस, ओके। तो ये बेसिक प्रोसेसेस कौन कौन सी है? यू कैन ऑब्जर्व ऑन योर स्लाइड। सबसे पहला है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है क्लासिफिकेशन, और चौथा है नॉमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन,
आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इसको एज अ की अगर आपको याद रखना है तो यू कैन रिमेम्बर एज CICN। ओके, CICN, ये एक की बना के आप उसको याद कर सकते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, यही एक परफॉर्मर रहता है। मतलब इट इज ओनली द प्रोसेस। ओके, यही एक पूरा सिस्टम एंड इट इज गोइंग टू रन इन दैट वे, इट विल बी क्लासिफाइड। ओके, अल्टीमेटली जो भी आपने नया ऑर्गेनिज्म देखा है, आप उसके इतने पैरामीटर परफॉर्म करोगे, उसको ऐसे चेक करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू गिव अ पर्टिकुलर नेम। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये साइंटिस्ट है, एक टॉर्टोइस को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे कुछ ग्रुप है रिसर्चर्स का, ये कुछ फ्लावर्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करके पहले उसके कैरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। सबसे पहले कैरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है, क्या है। फ्लावर है तो कौन से कलर के हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, लीव्स उसके कैसे हैं, स्टेम कैसा है, रूट कैसा है। इन शॉर्ट, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स का ये स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद उसको रेफरेंस के साथ आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब जो प्रीवियसली स्टडी किया हुआ है उसके हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे। ओके, मतलब लर्निंग फ्रॉम पास्ट। फाइन। आइडेंटिफिकेशन के बाद वो उसको क्लासिफाई करेंगे, और वो भी रेफरेंस के थ्रू ही होने वाला है। इट इज नॉट, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, इट इज नॉट अ रैंडम प्रोसेस। फाइन। एक बार किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हो जाता है, देन यू आर गोइंग टू हैव अ नेम। ओके, मतलब फिर आप उसका एक नाम फिक्स करने वाले हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम ये रहने वाला है, एंड दैट नेम विल बी यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री में एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया गया है, किसी दूसरी कंट्री में उसका कुछ और नाम है, ऐसा नहीं है। और अगर हम हमारे भारत जैसी कंट्री की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे तो हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में लैंग्वेज भी बहुत डिफरेंट है। तो कुछ चीज को गुजराती में हम कुछ बोलते हैं तो मराठी में उसका नाम चेंज हो जाता है। ओके, अगर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे, साउथ में चले जाएंगे, तो और भी नाम चेंज हो जाएंगे। चीज एक ही है। ओके, एक ही ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसके नाम चेंज हो जाते हैं, तो इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। तो वो कॉमन नेम है। लेकिन यहाँ पे जो हम नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, तो वो होंगे साइंटिफिक नेम बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन इट्स आइडेंटिफिकेशन, बेस्ड ऑन इट्स क्लासिफिकेशन। ओके, और ये यूनिवर्सल होंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट में उस ऑर्गेनिज्म को कोई भी नाम दे दें, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम तो वही रहने वाला है। वो कभी भी किसी भी लैंग्वेज में चेंज होने वाला नहीं है। ओके, सो ऑब्वियसली वी विल डिस्कस अबाउट द साइंटिफिक नेम इन डिटेल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो भी। चलिए, तो आई होप यू आर गेटिंग माय वर्ड्स। ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली। बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनोमी। तो उसमें सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया था, CICN इज द वे, और उसमें पहला है दैट इज कैरेक्टराइजेशन। ओके, सो सी यहाँ पे दो ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाए गए हैं, सम आर प्लांट्स एंड सम आर एनिमल्स। और आप देख भी सकते हैं सभी एनिमल एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। सभी एनिमल अगर एक जैसे नहीं दिख रहे हैं तो फिर डिफरेंस तो है। डिफरेंस है, इसका मतलब डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी इसीलिए सबके कॉमन नेम तो अलग है, तो साइंटिफिक नेम भी सबके अलग होने वाले हैं। फाइन। सो व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन? सबसे पहले तो हमें ये समझना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच एज external and internal structures, structure of its cells, its development process, its ecological information, etc. तो कैरेक्टराइजेशन में मैंने बोला ना, जो अभी देख रहे थे जो फोटोग्राफ में आप, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे थे, तो उसके कैरेक्टर्स को समझने का ट्राई करें। अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर्स, कैसे? बोथ द टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल, इंटरनल, बाहर से कैसा दिख रहा है, अंदर से कैसा दिख रहा है। ओके, देन अप टू द एनाटॉमिकल लेवल, मतलब इंटरनल लेवल में फिर वो बाद में चेक करते हैं उसके सेल कैसे हैं। ओके, सेल का साइज, शेप, स्ट्रक्चर, ओके, ये सभी चीजें मार्क की जाती है। उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस, ओके, मतलब
वो डेवलप कैसे हो रहा है, उसकी बर्थ कैसे हो रही है, क्या वो एग्स के थ्रू बर्थ ले रहा है या फिर वो डायरेक्टली एज एन ऑफस्प्रिंग बर्थ ले रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, ये सभी चीजें आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं बाद में, लेकिन ये इसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस भी हमें चेक करनी पड़ेगी। फिर है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी गैदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, मैंने अभी बात की थी, डेजर्ट में एनिमल्स अलग होते हैं, माउंटेन रेंज में अलग होते हैं, अगर आप मराइन जोन में चले जाएंगे तो वहां पे एनिमल प्लांट सब कुछ अलग हो जाएंगे, मतलब उसका हैबिटेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन सभी चीजों की इफेक्ट होने वाली है। ओके, जैसे आप देखते हैं तो पेंगुइन आपने सुना होगा, ओके, पोलर जोन में, तो पेंगुइन बीइंग अ बर्ड होता क्या है, उसकी स्किन कितनी थिक है, क्या किसी बर्ड की ऐसी थिक स्किन है, नहीं है। ओके, तो ऐसे चेंज हो जाते हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी पड़ेगी। फिशेस, ओके, तो फिशेस को फिन्स दिए गए, क्यों दिए गए, उसका बॉडी है एरोडायनामिक्स को फॉलो कर रहा है, बिकॉज उसको स्विम करना है इन द वाटर। तो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू कलेक्ट। ओके, सो यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन में इन सभी चीजों को हम स्टडी करने का ट्राई करेंगे। ओके, देन वी विल मूव, इतना हो जाए, एक बार आपने सब चेक कर दिया, उसका डेटा शीट बना दिया, देन यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होने वाला है, सो इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। ओके, यहाँ पे क्या पॉसिबल करवाना है, नेमिंग। तो आइडेंटिफिकेशन इज अ क्रूशियल स्टेप। कैरेक्टराइजेशन आपने किया, सभी कैरेक्टर्स सही मार्क किए, देन ऑल्सो अगर आपने उसको रॉन्ग आइडेंटिफाई किया है, मिस इंफॉर्मेशन की वजह से, मिस गाइडेंस की वजह से आपने रॉन्ग आइडेंटिफाई किया है, देन आप उसको गलत तरीके से नाम देने वाले हैं। तो करेक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जनरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टराइजेशन, और उसके थ्रू आप नेक्स्ट लेवल पे फिर जाने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। फाइन, अब क्लासिफिकेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक फोटोग्राफ आपको दिखाया गया है। ओके, एक ट्री यहाँ पे दिखाया है और उस ट्री की 5 अलग अलग ब्रांचेस पे 5 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे पहला ब्रांच है प्रोकैरियोट्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया है। ये जो प्रोकैरियोट्स हैं ये सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, सबसे सिंपल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स में रहते हैं। फिर होते हैं, और ये सारे प्रोकैरियोट्स हैं, राइट। फिर होते ये प्रोटिस्टा। के प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा इज आल्सो यूनिसेलुलर, जैसे यहाँ पे प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर थे, ऐसे प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, कल बताया था, ऐसे ही इसके पहले वाले सेशन में जैसे हमने बात की थी, ऐसे ही यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है सिंगल, एक पूरा ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल के हिसाब से पूरे अपने लाइफ स्पान को कंप्लीट करता है। मतलब जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एक सेल, सिर्फ एक सेल एक ऑर्गेनिज्म के जैसे बिहेव करता है। और मैंने ये भी कल बताया था कि ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो वहां पे बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ द सेल्स आर, बिलियंस ऑफ द सेल्स आर देयर, यू कैन से। लेकिन ये जो प्रोटिस्टा है वो भी यूनिसेलुलर है, तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्टा, इसमें डिफरेंस क्या है। तो प्रोटिस्टा जो है दैट इज यूकैरियोट। ओके, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इनके बारे में आप डिटेल में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिंपल फॉर्म में आपको बताने का अभी एक स्टेटमेंट फॉर्म में अगर मैं बताऊं, ये सबसे प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म है। मतलब जब प्लेनेट अर्थ पे लाइफ बनना शुरू हुई उस टाइम पे सबसे पहले ये ग्रो हुए। ओके, और ये प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म है, ये उससे थोड़े कॉम्प्लेक्स है, लेकिन है कैसे, स्मॉल साइज, ये भी माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट ऑब्जर्व। ये जो आप 10th में पढ़े थे अमीबा, तो अमीबा इज इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा ग्रुप। ओके, फिर आता है फंजाई। ओके, फिर आता है फंजाई, ऑल द फंगस, ओके, दैट इज इंक्लूडेड इन फंजाई, ये भी यूकैरियोट है।
फिर आते हैं प्लांट्स के, तो ऑल द प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन दिस ग्रुप, दिस किंगडम। ओके, ये भी यूकैरियोट्स हैं। फिर सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो टॉप मोस्ट ब्रांच पे आपको दिखाए हैं, दैट इज एनिमल्स। ओके, और ये जो एनिमल्स हैं ये सबसे कॉम्प्लेक्स है। ओके, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको इसमें देखने मिलती है। ओके, सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी यही है। फाइन, तो हम फिर एक बार कैरेक्टराइज करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और आइडेंटिफिकेशन के बाद वी ट्राई टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इन एनी ऑफ दिस 5। इन पांचों में से किसी एक में हम उसको आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं, क्लासिफाई करने का ट्राई करते हैं। मतलब अगर कैरेक्टर्स उसके बैक्टीरिया जैसे लगते हैं तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं बैक्टीरिया, अगर प्रोटिस्टा जैसे लगते हैं तो प्रोटिस्टा, प्लांट के जैसे लगते हैं तो प्लांट में, फंगस के जैसे लगते हैं तो फंजाई ग्रुप में, और अगर एनिमल्स के जैसे लगते हैं तो फिर हम उसको क्लासिफाई करते हैं इनटू द एनिमल ग्रुप, एनिमल किंगडम यू कैन से। तो दिस इज 5 किंगडम। ओके, ये चैप्टर नंबर 2, ये जो इमेज है दैट इज एंटायर चैप्टर नंबर 2। मतलब ये पूरा ब्रांचेस, ये सभी चीजें आपको वहां पे डिटेल में पढ़ने मिलने वाली है। ओके, यहाँ पे हम उसका बेस प्रिपेयर कर रहे हैं। सो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सो इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, दैट इज कॉल्ड टैक्सा बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स। ओके, ग्रुपिंग ऑफ, हम पहले कैरेक्टराइज कर दिया क्या क्या किसके कौन कौन से फीचर्स हैं। आफ्टर कैरेक्टराइजेशन हमने उसको आइडेंटिफाई कर दिया। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हम अब उसका सॉर्टिंग कर रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से वी आर सॉर्टिंग द ऑर्गेनिजम्स। ओके, आप दैट यू आर having this type of the structure, you are protist. You are having this type of the characters, you are fungi. Okay, you are having chlorophyll, you are having roots, you are having leaves, you are having flowers, then you are plant. Okay, you are having limbs. Okay, you are having respiratory system, you are having breathing system, you are having digestive system. Okay, and you are dependent on the plants or other animals, then you are animal. Okay, so likewise many of the questions you are going to ask during this entire process, and then you will classify the organisms into different categories. और ये जो categories है उसको बोला जाता है taxa. You can say it is taxa. Okay, so taxa किसके base पे है? तो it is based on the characters. Okay, after that the final step, okay, that is nomenclature. nomenclature को आप बोल सकते हैं the product of entire process. अभी तक जो आप कर रहे थे that is process. Obviously nomenclature is also process, लेकिन एक बार उसको नाम मिल जाएगा that is the end product of the entire system. okay, फिर उसका नाम जो हो गया, जैसे हमारा नाम एक बार हो जाता है, okay, छोटे जब हम होते हैं हमारा नाम एक बार रख दिया जाता है, देन हमारे जो भी निक नेम्स थे वो खत्म हो गए। ओके, उसके बाद लोग हमें अपने रियल नेम से बुलाना शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी एक बार नॉमेनक्लेचर हो गया, देन यूनिवर्सली द ऑर्गेनिज्म विल बी आइडेंटिफाइड विद द सेम नेम। भले ही उसके लोकल नेम कुछ भी हो, आपके फ्रेंड्स जैसे आपको कुछ भी बुलाते हैं, आपके मम्मी पापा आपको कुछ अलग नेम से बुलाते हैं, निक नेम्स। ओके, लेकिन ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड आपके मार्कशीट्स में, आपके स्कूल एलसीज में या आपके आधार कार्ड में एक कॉमन नेम है हर जगह पे। ओके, तो दैट इज योर रियल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे भी नॉमेनक्लेचर जिसका होता है एक बार, दैट इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, सो लेट्स सी। तो यू कैन सी, ये आपको पता ही अभी तो सीजन चल रहा है आम का, राइट? सो यहाँ पे आम कह रहा है आपको दैट आई एम मैंगीफेरा इंडिका। तो ये मैंगीफेरा इंडिका ये क्या हुआ? सो हम तो बोलते हैं आम हिंदी में, ओके, इंग्लिश में हम बोलते हैं मैंगो, गुजरात में हम रहते हैं तो गुजराती में हम उसको बोलते हैं कैरी, राइट? लेकिन सी इन इन इंडिया, अभी तो हम गुजरात से बाहर नहीं निकले और हमारे पास आम के 3 नाम है। और अगर हम पूरे इंडिया में घूमेंगे, पूरे भारत में अगर हम घूमेंगे तो यू कैन बी कंफ्यूज्ड, ओके, कि अच्छा इसको भी आप आम को ये बोलते हैं, राइट? तो दिस इज द साइंटिफिक नेम, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। मतलब अगर आप जापान में भी चले जाओ, अगर आपको वहां की लोकल लैंग्वेज पता नहीं है, लेकिन किसी लर्नेड बायोलॉजी पर्सन से या किसी एक बायोलॉजी स्टूडेंट से अगर आप बात करें कि भाई
मुझे जापानीज नहीं आती है, राइट? I need to have some Mangifera indica. Okay, then that fellow will understand कि आप उसके पास से मैंगो मांग रहे हैं. Okay, तो आप यूएसए भी चले जाए, जापान भी चले जाए, किसी भी कंट्री में जाए, the name will remain same, that is Mangifera indica. Fine. और ऐसे ये हनी बी है, I am Apis indica. ओके, तो ये हनी बी का साइंटिफिक नेम है. हर जगह पे अलग अलग नाम हो सकते हैं हनी बी के, लेकिन इट इज द कॉमन scientific name throughout the planet. So it is the standardization of the names of organisms such that an organism is known by the same name all over the world. ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. ऐसा स्टैंडर्डाइज नेम हम बनाते हैं. स्टैंडर्डाइज, ये भी रैंडम नहीं है. ओके, इसके पीछे भी लॉजिक है. ये लॉजिक आप समझेंगे अभी इसी चैप्टर में. ओके, तो ये जो है that is a standardized name, and from the same name the organism is going to be identified. It will be called upon with the same name throughout the globe. Okay, तो नॉमेनक्लेचर जो होता है ऑर्गेनिज्म का, आपने अभी देखा लास्ट स्लाइड में कि वहां पे नाम था मैंगीफेरा देन इंडिका. तो हमारा जैसे नाम है, मेरा नाम आपके स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है, कुलदीप लुहाना, तो एक मेरा खुद का पर्सनल नेम है और एक मेरा सरनेम है. ओके, तो वहां पे साइंटिफिक नेम में से सरनेम और पर्सनल नेम ऐसा नहीं है. ओके, फिर भी वहां पे दो नाम दिए जाते हैं, इसीलिए मैंगीफेरा एंड देन इंडिका फॉलोड बाय इंडिका. फाइन. So the system of naming with the two components is called binomial nomenclature. Nomenclature मतलब नेमिंग करना. कैसे देना है? बायनोमियल. कितने नाम देने हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को? दो. बाय का मतलब होता है टू. सो इट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर. ओके, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं. दो नाम मतलब वो साथ में लिए जाएंगे. दो नाम इसका मतलब ये नहीं है, अभी मैं आपको समझाऊंगा. और ये जो सिस्टम है, ये सबसे पहले जिसने काम शुरू किया था, द पर्सन हु हैव इनिशिएटेड द एंटायर प्रोसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट वाज कार्लस लिनियस. तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर की भी जो एंटायर प्रोसेस है, दैट इज डेवलप्ड बाय कार्लस लिनियस. ओके, तो देखते हैं कैसे नेमिंग प्रोसेस है. यू कैन सी ओवर हियर मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम है. Panthera tigris, that is a scientific name of tiger. तो नाम कैसे दिए जाते हैं? तो उसके लिए भी मैंने बोला थ्रू आउट द ग्लोब द नेम विल बी सेम. तो सेम नेम रखने के लिए एक कॉमन एजेंडा भी होना चाहिए, एक कॉमन बॉडी भी होनी चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो. ऐसा नहीं कि किसी ने एक नाम रखा और कल दूसरा कंट्री उसको अपोज करना शुरू करे. So it should not be there, and that's why internationally there are two bodies, okay, to give the names to the organisms. You can observe on the slide over here. Botanical names. Botanical names का मतलब क्या होगा? ये plants. Okay, so the botanical names are based on the rules in International Code for Botanical Nomenclature. तो International Code of Conduct मतलब ऐसे इंटरनेशनल रूल्स बने हुए हैं. उस रूल बुक के हिसाब से ही यू कैन गिव द नेम्स टू एनी प्लांट, एनी ऑफ द प्लांट, चाहे वो सिंपल प्लांट हो या चाहे वो मैंगो जैसा कॉम्प्लेक्स प्लांट ही क्यों ना हो. देन जूलॉजिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. तो जूलॉजिकल मतलब के एनिमल्स, जस्ट लाइक दिस. तो एनिमल्स के जो नाम है वो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर रूल्स के हिसाब से दिए जाते हैं. तो ICBN ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएटेड फॉर्म है ऑफ इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. ICZN इट इज द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ये नीट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेडली पूछे गए हैं. जब एम्स लिया जाता था तब भी पूछे गए हैं फुल फॉर्म एंड एब्रीविएटेड फॉर्म. फाइन. ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इट इज अ लास्ट स्लाइड. हाउ यू कैन डिराइव द नेम. आप नेम कैसे देते हैं? तो यहाँ पे विद एग्जांपल आपको समझाया गया है.
Okay. So you can see over here, just observe on the board, that is scientific names are in Latin. तो ये इंग्लिश नेम नहीं है, पढ़ने में हमें इंग्लिश नेम लगते हैं, बट दीज आर नॉट द इंग्लिश नेम्स, दीज आर लैटिन वर्ड्स. ओके, बायोलॉजी में जितना आप पढ़ेंगे, ओके, वट एवर यू आर गोइंग टू लर्न इन बायोलॉजी, the scientific words are coming from Latin or Greek. Okay, either it will have origin from Latin, either it will have origin from Greek. Okay, so generally ये universally accepted हो चुका है that scientific names will be in Latin only और लेटिनाइज्ड. अगर कोई लेटिन नेम अवेलेबल नहीं है लेटिन लैंग्वेज में, देन उसका इंग्लिश नेम जो है उसको आपको लेटिनाइज किया जाएगा. ओके, अभी मैं आपको समझाऊंगा लेटिनाइज करने का मतलब क्या होता है. एंड इट इज रिटन इन इटैलिक्स. ओके, आपको उसको इटैलिक्स में लिखना है, जैसे यहाँ पे नीचे दिख रहा है ऐसे. ओके, ये इटैलिक में लिखा हुआ है. इटैलिक फॉन्ट्स आपको पता ही है. ओके, इटैलिक फॉन्ट्स में उसको लिखना पड़ेगा. ओके, मतलब जब आप टाइप कर रहे हैं, व्हेनेवर यू आर टाइपिंग, यू हैव टू परफॉर्म इटैलिक राइटिंग. ओके, अब इटैलिक राइटिंग तो बहुत टफ है. ओके, कर्सिव राइटिंग करना, ओके, इटैलिक में लिखना, राइट. तो उसके लिए सेकंड प्रोविजन है. सेकंड प्रोविजन मतलब जब आप टाइप करेंगे, सो ड्यूरिंग द टाइपिंग, सपोज यू आर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट and in that you have to write some scientific names, then obviously you have to type in italics. Okay, क्योंकि लैपटॉप और उसमें आपको प्रोविजन मिल जाएगा. in your mobile also you are having a provision, okay, to write in italics. लेकिन अगर आप हैंड रिटन कर रहे हैं उसको, ओके, जैसे एग्जाम में बहुत बार लिखना पड़ेगा, तो हैंड रिटन में आप कैसे करेंगे, तो लिखा है यहाँ पे, यू कैन ऑब्जर्व, व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन सेपरेटली. तो जब आप उसको हैंड रिटन कर रहे हैं, देन एट दैट टाइम यू हैव टू मेक अंडरलाइन. लेकिन कैसा, सेपरेट अंडरलाइन. सी यहाँ पे है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा इंडिका जो है, दैट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो. लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, अंडरलाइन है, लेकिन कंटिन्यूड अंडरलाइन नहीं है. यू कैन सी यहाँ पे ब्रेक है. यहाँ पे मेरा अभी कर्सर आपको दिख रहा है, लेजर. ओके, दैट इज, यू कैन सी यहाँ पे ब्रेक है. तो अगर आपने कंटिन्यू अंडरलाइन की तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. आपको ब्रेक करना है वहां पे. ओके, मैंगीफेरा के नीचे एक अंडरलाइन और देन इट इज फॉलोड बाय अंडरलाइन अंडर इंडिका. ओके, सो ये एक रूल है. द फर्स्ट वर्ड इज जीनस नेम. जो सबसे पहला नाम रहता है दैट इज द जीनस. ओके, जीनस है, दैट इज कॉल्ड जेनेरिक नेम. तो ये मैंगीफेरा है, दैट इज जीनस, इट इज अ जेनेरिक नेम. एंड द सेकंड वर्ड, it is called specific epithet. Okay, that is species name. तो पहला नाम है that is genus और दूसरा नाम है that is species. ये एंड पॉइंट ऑफ द क्लासिफिकेशन है. इसके आगे कोई और नाम नहीं दिया जाता है, पर्टिकुलरली इन साइंटिफिक सिस्टम. उसके बाद समझने के लिए हम ऐड करते हैं कुछ चीजें, वो नेक्स्ट सेक्शन में आने वाला है. लेकिन ये आपको अभी याद रखना है, जो पहला वाला नेम रहता है that is genus and the second name that is species. Genus name starts with capital letter. You can see genus का नाम यहाँ पे हैंड रिटन में भी कैपिटल में है, यहाँ पे नीचे भी दूसरा एक होमो सेपियंस का भी है, that is also in capital. In this italics also it is also capital. तो जीनस का नाम हमेशा आपको कैपिटल में ही शुरू करना है, चाहे वो इन बिटवीन द स्टेटमेंट हो या ना हो. शुरुआत भी हो, इन बिटवीन द स्टेटमेंट हो या एंड में भी हो, बट द जीनस नेम शुड बी इन first letter of the genus should be caps and the species name with the small letter. तो सिंपल लैंग्वेज में ये याद रख सकते हैं कि साइंटिफिक नेम अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिखते हैं, एट दैट टाइम द फर्स्ट लेटर, दैट इज द जीनस फर्स्ट लेटर, should be in caps, must be in caps, actually not should be, must be in caps. और बाकी के जितने भी लेटर्स है, whether it is of species, each and every letter should be in small letters. Okay, at the end you have to write abbreviated name of the author. अब ये author क्या चीज है, author हमें पता है, कोई बुक लिखता है तो उसको हम author कहते हैं. तो यहाँ पे भी अगर कोई साइंटिस्ट, if some of the scientist is identifying a new species first time, किसी ने पहले इसको आइडेंटिफाई नहीं किया है और उसी ने उसको साइंटिफिक नेम दिया है with the help of the ICZN and ICBN, then
क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। तो क्रेडिट कैसे मिलता है उस साइंटिस्ट को? जिसने सबसे पहले ये नाम दिया है उसका नाम एट द एंड लिखा जाता है, एब्रीवेटेड फॉर्म में, पूरा नाम लिखा नहीं जाता। ओके, सो एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम ऑथर्स नेम इज रिटन, जैसे यहाँ पे है होमो सेपियंस, ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, और बाद में शॉर्ट में लिखा है लिन। तो ये लिन क्या है? कार्लस लिनियस का साइंटिफिक कार्लस लिनियस का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो लिन लिखा गया है, इट इज ऑथर्स नेम। ऐसे ही आप लिख सकते हैं मैंगीफेरा इंडिका, तो इट इज ऑल्सो एब्रीविएटेड लिन। ओके, जनरली ये लिखा जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम नहीं लिखते हैं। सिर्फ साइंटिफिक नेम लिखने का अगर कोई हमें बोलता है तो इट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। बट रिमेंबर, आपको नीट में क्वेश्चन पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक नेम इज रिटन करेक्टली, तो आपको एक ऐसे लिख के देंगे मैंगीफेरा इंडिका, फिर मैंगीफेरा इंडिका इटलिक्स में, मैंगीफेरा इंडिका एल डॉट एंड मैंगीफेरा इंडिका लिन डॉट, ओके, LINN डॉट। तो उस टाइम पे चारों में से सही कौन है? तो दैट इज दिस वन, मैंगीफेरा इंडिका LINN एंड देन डॉट। तो ये नीट क्वेश्चन है, आप कोई भी नीट का पेपर उठा के देखिए पिछले कुछ सालों में, तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल सकता है। और आपके पास अगर प्रैक्टिस बुक है तो उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन होगा ही, एक नहीं बहुत सारे होंगे जिसमें ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए गए होंगे और बाद में उसमें पूछा गया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन करेक्टली। तो ये एग्जैक्ट करेक्ट मेथड ये है, पहले जीनस, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, फिर उसका स्पीसीज, ये दोनों इटलिक्स में, और बाद में ऑथर का नेम एब्रीविएट किया हुआ, लेकिन सिर्फ एल डॉट नहीं करना है। एल डॉट का मतलब क्या? जैसे मेरा सरनेम है लुहाना, तो एल डॉट का मतलब तो लुहाना भी हो सकता है, एल डॉट का मतलब लिनियस भी हो सकता है। तो क्रेडिट किसका है? तो दैट इज लिन, लिनियस। ओके, एंड देन डॉट। ओके, फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम रखते हैं आज का सेशन। ओके, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा कैसे डाइवर्सिटी को हम स्टडी करते हैं। दैट इज CICN मेथड, क्लासिफिकेशन, सॉरी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड अल्टीमेटली द नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, यहाँ तक आपका जो खत्म हुआ है दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसके बाद का जो सेशन है वो पूरा प्रोसेस जो है ना, दैट इज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो अप टू दिस I am going to end this session. Hope you have learned well. If you have any doubt, you can post your queries. Okay, and I will try my best to justify your questions. Okay, so goodbye for now.